हाँ, तो हम लोग कर रहे थे parallel lines. If two lines do not intersect each other, they are called parallel. In such a case, no solution. Parallel होंगे तो क्या होगा? No solution. And such a pair is called inconsistent. Inconsistent means if it has no solution at all. A system of linear equation has no solution, then it is called inconsistent. और at least one solution होगा तो वो क्या कहलाएगा? Consistent. समझ में आ रहा है? अब तीसरा केस है तुम्हारा two lines are coincident. Two lines are coincident होगा तो there are infinitely many solutions. If two lines are coincident, so there are infinitely many solutions. In this case, it is said to be dependent. क्या कहलाता है? Dependent. And dependent solution is always consistent. समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखो, if two lines are intersecting, so it has unique solution, and it is said to be consistent. And if two lines are parallel, it has no solution, and it is said to be inconsistent. And third one is if two lines are coincident, so it has infinitely many solution, and it is said to be consistent. ठीक है? तो याद रखना, if there are a pair of lines in a plane, there are three cases. First case is two lines intersect each other. अगर intersect करेगा, it has unique solution. They cut at a point, it has unique solution. Unique solution होगा, they are consistent. ठीक है? और if they do not intersect each other, दूसरा केस है parallel होगा. Parallel होगा तो क्या होगा? It has no solution, and in this case, it is said to be inconsistent. क्या कहलाएगा? It has, if there is no solution, it is said to be inconsistent. And third case is if they are coincident. Coincident होगा तो क्या होगा? Coincident होगा, it has infinitely many solution. And in such case, it is said to be dependent solution. And we know dependent solution is always consistent. ठीक है? इस तरह से हम लोग एक बना लेते हैं. जब लाइंस तुम्हारा इंटरसेक्टिंग होगा तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा? देखिए, we consider a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. अब इस पे देखो, इसके कोफिशिएंट पर ध्यान देना. If a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, तो क्या होगा? पहले ये क्या होगा? It has unique solution. That is, it has unique solution. याद रखो, इसके किस पे ध्यान देना है? If a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, it has unique solution. Unique solution होगा तो that is consistent. Consistent. ठीक है? अब सेकेंड केस देखो, ये पहला था. अब सेकेंड देखो, if a1 upon a2 is equal to, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. If a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, तो इस क्या होगा? It has no solution. इसमें कैसा solution होगा? It has no solution. It has no solution. No solution होगा तो बताओ क्या होगा? बताइए बेटा.
नो सॉल्यूशन होगा तो हमने क्या बताया था, वेदर इट इज कंसिस्टेंट और पैरेलल लाइंस, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल इनकंसिस्टेंट, वेरी गुड, दैट इज इनकंसिस्टेंट। तो लाइंस कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो लाइंस कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग, और a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा तो लाइंस कैसा होगा, पैरेलल, पैरेलल होगा तो हाँ, अब पैरेलल होगा तो कितना सॉल्यूशन होगा, हाउ मेनी सॉल्यूशन, पैरेलल होगा तो कौन कितने सॉल्यूशन होंगे जल्दी बताइए, नो सॉल्यूशन, यस। एंड थर्ड वन इज क्या है, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये क्या हो गया, इट इज कोइंसिडेंट, क्या हो गया ये, कोइंसिडेंट। दिख रहा है, नीचे वाला दिख रहा है बेटा, बताइए, नीचे वाला लाइन दिख रहा है, नीचे वाला दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिखूंगी, मैम आधा दिख रहा है, मैम आधा दिख रहा है, थर्ड वाला दिख रहा है, थर्ड पॉइंट हमने जो लिखा है वो दिख रहा है, नो नहीं मैम दिख रहा नहीं, तो ठीक है, हम लोग ऊपर लिखेंगे, देखो थर्ड वन को हम लोग ऊपर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ थर्ड पॉइंट दिख रहा है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, बताइए कैसा होगा ये लाइन, कैसा होगा, इट इज कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट होगा तो हाउ मेनी सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन होंगे जल्दी बताइए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कितना होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और ये कैसा होगा, इट इज ऑल्सो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का डेफिनेशन बताया, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन हो, तो ये वन सॉल्यूशन हो यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन भी तुम्हारा हो गया कंसिस्टेंट, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कोइंसिडेंट लाइन भी क्या हो गया तुम्हारा, कंसिस्टेंट। तो ये हमने थ्री पॉसिबिलिटी पे कर दिया, फर्स्ट होगा इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि a1 अपॉन a2 दोनों के लाइंस के कोफिशिएंट पर ध्यान दीजिएगा, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो लाइंस कैसा होगा, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड इट इज कंसिस्टेंट। और उसी तरह से इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसमें कैसा होगा, लाइंस आर पैरेलल एंड इट हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। उसी तरह से थर्ड वन हमने बताया, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो लाइंस आर कोइंसिडेंट एंड इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, so it is also consistent। अब यहाँ देखो तुम्हारा एक्सरसाइज में है, बताना है कि कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है और किसमें सॉल्यूशन होगा और किसमें नो सॉल्यूशन, हम लोगों को इस पे ध्यान दे करके बनाना है, इसका क्वेश्चन एक्स वाई पे बताना है देख करके। देखिए अब एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ, ये बोर्ड ये रब कर रही हूँ मैं, एक क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, on comparing a1 a2, on comparing a1 a2 a1 by a2 b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of a linear equation is consistent or inconsistent। बताना है कि कंसिस्टेंट है कि वो इनकंसिस्टेंट है, देख करके बताना है, पेयर ऑफ इसका a1 और a2 को कंपेयर करके। देखिए मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, 3x plus 2y is equal to 5, 3x पहला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, 3x plus 2y is equal to 5, second one is 2x minus 3y is equal to 7, 2x minus 3y is equal to 7, ठीक है। अब देखिए इसको कंपेयर कीजिए, कंपेयर a1 a2, देखो कंपेयर कीजिए, जब इसको हम लोग वी हैव, देखो इसका सेक्शन देखिए, वी हैव, अब इसको एक तरफ ले आओ, 3x plus 2y minus 5 is equal to 0, दूसरा पेयर हो गया 2x minus 3y minus 7 is equal to 0, there are two pairs हो गया ये। अब इसको भी
कंपेयर A1 अपॉन A2, A1 और A2 पे कंपेयर कीजिए, A1 अपॉन A2 पे कंपेयर कीजिए। A1 अपॉन A2, इसका A1 अपॉन A2 बताओ, A1 कितना है बताइए, A1 कितना और A2 कितना है, बताते जाओ बेटा। A1 अपॉन A2 कितना होगा, जल्दी बताओ, तुम लोग बोलो B/2। तो मैं बताऊं। वेरी गुड। A1 का एक का A1 का है 3 और ये इसका हो गया 3/2। उसी तरह से B1 अपॉन B2 का बताओ, B1 अपॉन 2 by B2 क्या minus होगा, 3, 2 by -2 by minus 3, क्या हो जाएगा, -2/3, 3। 2/-3, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2/3। अब बताइए C1 अपॉन C2 कितना है, minus C1 5 by अपॉन C2 minus 7, 5/7। 5/7, माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/7, 5/7। अब यहाँ देखो भी कंपेयर, अब इसको यहाँ देखो, A1 अपॉन A2, पहले ही देखो, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, क्या है, यहाँ देखो 3/2 इज नॉट इक्वल टू -2/3, दोनों इक्वल नहीं है, तो वी विल से दैट A1 अपॉन A2, दिख रहा है बोर्ड, देखिए पीछे से कर देना, दिख रहा है नीचे वाला, देखो यहाँ, इधर कर ही देती हूँ, इधर करती हूँ। A1 अपॉन A2 कितना है, 3/2, B1 therefore A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2। यहाँ देखो 3/2 is not equal to -2/3, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, तो बताओ ये कैसा होगा सॉल्यूशन, बताओ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या unique होगा, solution, यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो बताइए कि वेदर इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, बताइए, consistent, कंसिस्टेंट। वेरी गुड, इट इज कंसिस्टेंट। तो इस पे हम लोग कोफिशिएंट A1 और A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 पे कंपेयर करके बताएंगे। एक और एग्जांपल ले रही हूं मैं, इसको समझ में आ रहा है, देख लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन का हमने लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन लिया था, वी कंपेयर A1 अपॉन A2, A1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, A1 इज गया तुम्हारा 3/2, B1 अपॉन B2 2/-3 यानी कि -2/3 और C1 अपॉन C2 -5/-7, ये हो गया तुम्हारा 5/7। अब यहाँ देखो A1 अपॉन A2 3/2 है, B1 अपॉन B2 -2/3 है, therefore A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, it has unique solution, so it is also consistent। अब देखो दूसरा एग्जांपल ले रही हूं मैं, सेकंड एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5x minus 3y is equal to 11। एक और क्वेश्चन ले रही हूं मैं, देखो 5x minus 3y, 5x minus 3y is equal to 11, 5x minus 3y is equal to 11 and second one is minus 10x plus 6y, minus 10x plus 6y is equal to -22 is equal to -22। बताइए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। देखो इसको पहले अरेंज कर लीजिए, इसको अरेंज कर लीजिए पहले, तो पहला क्या हो जाएगा, ये 5x plus -3y, इसको हम लोग लिख सकते हैं, वी हैव 5x minus 3y minus 11 is equal to 0, ये हो गया पहला तुम्हारा। सेकंड इज minus 10x plus 6y और plus 22 is equal to, now compare, कंपेयर कीजिए A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 अपॉन C2, कंपेयर कीजिए, अपने से कंपेयर कीजिए। अब देखिए A1 अपॉन A2 कितना होगा बताइए, -1। 5/-10, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, -1/2, 1/2 होगा, -1/2। उसी तरह से B1 अपॉन B2 को करो, B1 अपॉन B2,
तो B1 तुम्हारा कितना है 6 बाई -3 कितना होगा B1 कितना है तुम्हारा 3 -3 बाई 6 B1 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू -3/6 ये हो गया। इसको कैंसिल करोगे तो -1/2 ठीक है। अब C1 अपॉन C2 करो C1 अपॉन C2 यहीं पर हम लोग करते हैं C1 अपॉन C2 ये हो गया तुम्हारा -11/22 इसको भी जब हमने सॉल्व किया तो क्या हो गया -1/2 तो यहाँ देखो क्या बन रहा है हमारा देयरफॉर A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 तो ये बताओ सिस्टम ऑफ कैसा होगा ये सॉल्यूशन कैसा होगा Infinitely meaning. Finite solution. Infinite solution very good it has infinite solution यानी कि ये कैसा लाइन बनेगा ये कोइंसिडेंट ना इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो बताओ वेदर इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट Consistent. वेरी गुड इट इज कंसिस्टेंट तो दो एग्जांपल हमने लिया एक इसको कंपेयर करते हैं A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 पे कंपेयर करना है और देखना है। अब एक और इसको नोट कर लो सभी इसको नोट कर लो फिर हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे इसको एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसको पहले नोट कर लो सब लोग एक और एग्जांपल लेते हैं ये हो गया सभी नोट कर लिए सभी बोल नहीं रहे हो तुम लोग और Ma'am, just wait. Ma'am, wait. ओके ओके देख लो देखो तुम्हारा एक बुक में भी अब एनसीईआरटी बुक में भी इसी टाइप का क्वेश्चन है ऑन कंपैरिजन ही पे बेस्ड है हमारा दो एक्सरसाइज ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 उसी पे बेस्ड है पहले समझ लो फिर जब बता देना कि कब हो गया है तुम्हारा Ma'am, done. डन ओके नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले रही हूं मैं नेक्स्ट एग्जांपल इज 2x - 3y = 8 एक और क्वेश्चन ले रही हूं मैं 2x - 3y = 8 2x - 3y = 8 today is 24th two x minus 3y is equal to 8 and second one is 4x minus 6y is equal to 9 अब इसको हम लोग a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 पे इसको अरेंज करो तो लिखते हैं हम लोग 2x minus 3y minus 8 is equal to 0 and 4x minus 6y minus 9 is equal to 0 ठीक है देखिए नो कंपेयर a1 बाई a2 बताइए a1 अपॉन a2 कितना होगा जल्दी बताते जाओ a1 अपॉन a2 बच्चे बताते जाओ दो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था जल्दी बताओ a1 2 बाई वेरी गुड 1 2 उसी तरह से b1 अपॉन b2 बताओ कितना होगा b1 अपॉन b2 जल्दी बताइए -3 by -6. -3 बाई -6 वेरी गुड कैंसिल करके कितना हो रहा है 1/2 ये भी कितना आ रहा है 1/2 अब उसी तरह से C1 अपॉन C2 देखो कितना आ रहा है C1 अपॉन C2 कितना आ रहा है बताइए -8 by -9. यानी कि 8/9 माइनस माइनस कैंसिल कर दिया तो क्या हो गया 8/9 अब यहाँ देखिए देयरफॉर अब इधर कर रही हूँ देयरफॉर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2
is not equal to C1 upon C2. यहाँ देखिए A1 upon A2 1/2. यहाँ देखिए A1 upon A2 कितना आ रहा है 1/2. B1 upon B2 1/2. बट C1 upon C2 कितना आ रहा है 8/9. तो A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. तो लाइंस कैसा होगा? इट हैज कितने सॉल्यूशन हो गए? जल्दी जल्दी बताइए. No solution. वेरी गुड. पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस है तो नो सॉल्यूशन होगा. तो नाउ टेल मी वेदर इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. Inconsistent. इनकंसिस्टेंट. हाँ, नो सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? इट इज इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट. तो याद रखो 3 केसेस हमने बताया. इंटरसेक्टिंग लाइंस आर इंटरसेक्टिंग तो कितने सॉल्यूशन होंगे बताइए? If lines are intersecting, two lines intersect each other, तो lines are intersecting होंगे तो कितने solution होंगे? Unique solution. Very good. And whether it is consistent or inconsistent? Consistent. Very good. Now, the question: if two lines do not intersect each other, Infinite solution. finite solution. So whether it is consistent or नहीं, तो do not intersect यानी कि do not intersect each other. They are parallel. Parallel होगा तो कितना होगा? No solution. पैरेलल होगा तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन. इनकंसिस्टेंट. एंड इफ टू लाइंस आर कोइंसिडेंट तो क्या होगा? इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. इन दिस केस इट इज कंसिस्टेंट. ठीक है, तो याद रखो इसके कोएफिशिएंट पर ध्यान रखना. इफ A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, if A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, बताओ कैसा होगा? इट हैज कौन सा सॉल्यूशन होगा? Unique solution. Unique solution. A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. Unique solution. Unique solution होगा तो क्या होगा? Consistent. और उसी तरह से if A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is एक और एग्जांपल ले रही हूं मैं. A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. तो कैसा होगा ये? नो सॉल्यूशन. याद रखो इसी पे बेस है ये. नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट. और तीसरा है तुम्हारा if A1 upon A2 is equal to B1 upon B2, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. So it is कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन. इनफाइनाइट सॉल्यूशन. इनफाइनाइट सॉल्यूशन. So it is consistent. तो इसी पे हम लोग कंपेयर करके बताना होगा. इसके कोएफिशिएंट ऑफ x भी करना होगा. If A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, it has unique solution. Like lines are intersecting. If A1 upon 2 is equal to B1 upon B2 is not equal to B1 upon C2, it has no solution. So it is inconsistent. Lines are parallel. If A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2, it has infinitely many solution. So it is consistent. ठीक है, ये कुछ हमने क्लियर कर लिया. अब देखो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 2 is on comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2. Find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point parallel or coincident. बताना है. चलो एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं. कुछ बुक से देखिए, एनसीईआरटी बुक अपना अपना देखिए और एक क्वेश्चन देखिए. इसको एक क्वेश्चन देखो. 5x minus 4y is equal to 5x minus 4y plus 8 is equal to 0. And second one is 7x plus 6y
-9 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को ध्यान दो, व्हाट इज a1 अपॉन a2? जल्दी बताते जाओ हमारे साथ। a1 बाई 7 और b1 अपॉन b2 बताओ कितना होगा? b1 अपॉन b2 बताते जाओ। -4 -4/6 -4/6, ठीक है, Yes, ma'am. -2/3. -2/3 हो गया, ठीक है। और c1 अपॉन c2 देखो, -8/9. 1/c2 इज इक्वल टू -8/9। तो कहने का मतलब क्या हुआ? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 तुम्हारा कितना है? 5/7। b1 अपॉन b2 कितना है? -2/3। बताओ तो कैसा होगा? Find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point। क्या ये intersecting होगा? Yes, ma'am. Yes, it is intersecting lines। Intersecting lines intersect at a point। ठीक है, how many solutions? जल्दी बताओ। Unique solution. solution Whether it is consistent or Unique. inconsistent। Consistent or Consistent. inconsistent? Consistent, ठीक है, ठीक है, Consistent. वेरी गुड। चलो अब आ रहा है कुछ कुछ समझ में?